Hello everyone, my name is Rajneesh and welcome to today's lecture. In this lecture, we are going to solve lead code problem number 47. And in the last video, we have discussed lead code problem number 46. If you haven't watched that video, I'll highly recommend you to watch that video first. You can get the link of the video on the I button and in the description box also. So let us begin. I'll take you to the questions first, then we'll discuss the logic and implement the logic afterwards. You are given a collection of numbers which is actually nums, and that nums might contain duplicates. Okay, and you have to return all the possible unique permutations in any order. So order does not matter here. Let us take an example and understand the question first. Suppose you are given an array nums and it contains three integers 1 1 and 2. What you have to do, you have to return all the possible permutations, but make sure that combination of permutation is unique. So before taking this example, let me tell you how the permutations look like for this array. Suppose you are given an array which contains 1 2 3. Now you have to write all the possible permutation of this particular array. So let us write it first. So the first possible permutation is 1 2 3, and the next one will be 1 3 2, and the next one will be take the 2 at the first position, 1 and 3 at the second and third position, keep the 2 over here, swap the position of 3 and 1. Now take the 3 at the first position, 2 and 1 remains same here. Now keep the 3 here and swap the position of 1 and 2. Okay, in this manner we have got all the 6 possible permutations. So now here you can see 1 2 3, and remaining in the 5 permutations there is no 1 2 3. Okay, so 1 2 3 is unique. Unique means this particular permutation should not be repeated. Okay, so now suppose but you are given an array which is 1 1 2. So let us discuss all the possible permutation of this particular array. First of all, what is the order of this array? Order is 3. So how many permutations are possible? 3 factorial permutations are possible, which is nothing but 6. So let us write this first. So 1 1 2 is the first position or first permutation. Now swap the position of this second and third element, which is nothing but 2 and 1. Now take this one at the first position. Okay, so it will be 1, and this second and third position, so it will be on the second and third position. Now swap the position of this 1 and 2, so it will be 1 2 1. Now keep this 2 at the first position, which will be 2, and now remaining 2's ones are at the second and third position. Now swap their position, you will get 2 1 1. Okay, so these are the 6 possible permutations, but from here you have to return only unique permutations. So let us see how many of them are unique. Like 1 1 2 is here. Okay, this is unique, we will consider this. 1 2 1 is unique. Okay, we'll consider this. Okay, 1 1 2 हमने इसको पहले ही कंसिडर कर चुके हैं, तो अभी इसको कंसिडर नहीं करेंगे. 1 2 1 1 2 1 हमने इसको कंसिडर कर चुके हैं, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे. 2 1 1 ओके, इसको कंसिडर कर लेंगे क्योंकि अभी तक ये ऊपर आया नहीं एक भी बार. और 2 1 1 हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, अब इसमें से एक्चुअली हम देखें तो तुमको रिटर्न क्या करना है? तुमको रिटर्न करना है एक ऐसा एरे विच कंटेन्स योर ऑल परम्यूटेशंस like 1 1 2 1 2 1 and 2 1 1. now I think now question is clear. okay, तो करना क्या है क्वेश्चन में एक एरे दिया होगा तुमको. उस एरे में कुछ इंटीजर्स है, और उन इंटीजर्स में तुम ध्यान से देखना, कुछ नंबर्स हो सकता है कि रिपीट हो. वहाँ पे लिखा है दैट माइट कंटेन डुप्लीकेट्स. हो सकता है कि उस एरे में कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा हो, बट पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है. ओके, तो तुमको दोनों केस यहाँ पे लेके चलना है. ओके, तो जो सबसे पहला अप्रोच मन में आता है वो ये आता है कि हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 46 तो सॉल्व किया है. उसमें हम लोग क्या करते थे? उसमें हम लोग सारे परम्यूटेशंस को रिटर्न करते थे, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती थी कि जो एरे तुमको दिया है उस एरे में कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा. उसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लिखे हुए थे ना, तो एरे में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा था. तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सारे के सारे परम्यूटेशंस को निकाल ही लेते. ठीक है, मान लो अगर तुम्हें 1 1 के सारे परम्यूटेशन निकालने, तो 1 1 के सारे परम्यूटेशन 1 1 और 1 1 आएंगे, ये दो चीज़ें
है ना। तुम्हें रिटर्न कैसे करोगे? तुम्हें रिटर्न करने के लिए यानी कि तुम एक एरे बनाओगे जिसमें तुम अपने पहले परम्यूटेशन और दूसरे परम्यूटेशन को डालते थे, है ना, लेक्चर नंबर 46 में, यानी कि पास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा था ना 46 वाले क्वेश्चन में, कि ऐसे सारे परम्यूटेशंस निकालो, अगर परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते तो उसको इस एरे में पुश कर दो और फिर इस एरे को यहाँ से रिटर्न कर दो। ये हम लोग करते थे। अभी क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप करते हैं। ये जो आंसर है ना, ये आंसर, इसके अंदर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर जो एलिमेंट्स गिवन है अगर वो एक से ज़्यादा बार अकर हो रहे तो पॉसिबिलिटी है कि जो परम्यूटेशंस का एरे तुम्हें मिलेगा उसमें भी परम्यूटेशंस रिपीटेड हो। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम लोग एक सेट बना लेंगे, ठीक है। ये जो सेट बनाएंगे इस सेट में हम लोग सबसे पहले तो 1 1 को डाल देंगे, दूसरा 1 1 को डाल देंगे, ठीक है। बट सेट में तो हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट यानी कि एक्चुअली दूसरा 1 1 तो पुश नहीं होगा ना इसमें, है ना, दूसरा 1 1 पुश नहीं होगा, तो ये सेट में बचा सिर्फ ये। तो अगर इस सेट के एलिमेंट को मैं एक एरे में डालूं और इस एरे को रिटर्न कर दूं तो हो गया ना मेरा काम। ओके, एक बार वापस से बताता हूँ। तो दो साइज का मैंने एक एरे लिया, उसमें एलिमेंट्स क्या है, 2 एंड 2 रिपीटेड है, ठीक है। तो इसके परम्यूटेशंस क्या बनेंगे, 2 2 एंड 2 2, इन दोनों के पोजीशन को स्वैप करोगे तो दूसरा परम्यूटेशन मिलेगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि तुम एक एरे में इस 2 2 को रिटर्न करना है ना। दो बार ये 2 2 नहीं आना चाहिए। अभी तुम ये लाने के लिए क्या करोगे, अगर हम लोग 46 वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचें तो इस एरे का हम लोग सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस एक एरे में डाल देंगे, ठीक है। हमने ये 46 में कर चुके थे, लेकिन इसी को थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पहुँचने से पहले ना, यहाँ पहुँचने से पहले जो परम्यूटेशंस तुम एरे में पुश कर रहे हो उसको तुम किसी एरे में ना पुश करके एक सेट में पुश करो, कैसा रहेगा, है ना सही। तो सबसे पहले तुम 2 2 को पुश करोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर जब तुम दूसरी बार 2 2 को पुश करोगे तो सेट तो इसको लेगा ही नहीं ना। सेट में क्या होता है, सेट में तो एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, तो ये तुम्हारे पास सेट में सिर्फ अब तुम्हारे पास 2 2 रहेगा। तो अभी तुम क्या करोगे पता है, ये सेट का जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का एक एरे बनाओगे, यानी कि देखो एट लास्ट तुम्हें रिटर्न क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना है, लेकिन तुम्हें डिस्टिंक्ट बनाने के लिए तुमने एक सेट की हेल्प ली, है ना। डिस्टिंक्ट बनाने के लिए तुमने एक सेट की हेल्प ली, तो सेट के एलिमेंट्स को एरे में डाल के रिटर्न कर दो, है ना, ये सही तरीका। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखो ये सही है, ये काम सही करेगा, इट विल वर्क फाइन, बट द प्रॉब्लम वो इज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि तुम इसको लीड कोड पर सबमिट करोगे तो ये पूरा 100% टेस्ट केस ना पास करे, क्योंकि आंसर जिस एरे में स्टोर हो रहा था वो एरे बनाने के लिए तुम ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे थे। अभी तुम उस एरे में स्टोर करने से पहले एक सेट में स्टोर कर रहे हो, तो वो सेट की कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे एट वर्स्ट केस, है ना। ये एकदम वर्स्ट केस है, हो सकता है कि सारे अगर डिस्टिंक्ट ही हो जाए, है ना। मान लो 1 2 3 है, तो 1 2 3 में तुम्हारे 6 के 6 एलिमेंट्स तो उस सेट में भी स्टोर होंगे ना। तो वर्स्ट केस में सेट की कॉम्प्लेक्सिटी भी n फैक्टोरियल हो जाएगी और ये एरे की भी n फैक्टोरियल हो गई। तो टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जा रही है। अच्छा, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है फिर यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उतनी ही है जितनी होनी चाहिए अभी के लिए, n इंटू एन फैक्टोरियल, जो कि प्रॉब्लम नंबर 46 में भी यही थी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, ये सही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हो रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है हमारे पास, तो हम ये देखते हैं कि क्या ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटाया जा सकता है। ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटाने के लिए हमको ये जो एक्स्ट्रा स्टेप कर रहे हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम ये एक्स्ट्रा स्टेप को थोड़ा और ऑप्टिमाइज या फिर किसी और तरीके से सोच पाए तो बेटर है। ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, देखो अभी मैं पूरा रेफरेंस ले रहा हूँ लेक्चर नंबर 46 का ही, ठीक है। तो उसमें क्या किया था हमने, उसमें हमने सबसे पहले चेक किया था परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो यहाँ पे दो केसेस निकल के आ रहे थे कि हो सकता है परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा हो और हो सकता है परम्यूटेशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फिर तो कुछ करना ही नहीं है, फिर तो कोई कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर परम्यूटेशन एग्जिस्ट कर रहा है
तो मैं इसको आंसर के अंदर पुश कर दे रहा था ना, आंसर नाम का जो एरे था उस एरे में अपने परम्यूटेशन को पुश कर दे रहा था। अभी यहाँ पे एक काम करो, आंसर में पुश करने के पहले ये चेक कर लो कि आंसर का जो एरे है ना तुम्हारे पास, क्या उस एरे में पहले से वो परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर उस आंसर में पहले से ही तुम्हारा परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है जिसको तुम पुश करने जा रहे हो, तो फिर तुम पुश मत करो, है ना। समझ लो क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसर में तुम अपने सारे परम्यूटेशंस को स्टोर कर रहे हो, अपने सारे परम्यूटेशंस को स्टोर कर रहे हो। मान लो तुमने एक परम्यूटेशन तुम्हारा 1 1 है जो कि तुमने स्टोर कर दिया है, मतलब तुम्हारे परम्यूटेशन के हिसाब से तुमने एक नया परम्यूटेशन निकाला 1 1 वापस से, लेकिन जो कि 1 1 पहले से उस आंसर के अंदर है। तो तुम ये चेक करो 1 1 को पुश करने के पहले कि जिस परम्यूटेशन को तुम लेके आए हो पुश करने के लिए, क्या वो ऑलरेडी आंसर में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो उसको पुश कर दो, अदरवाइज पुश ना करो। ठीक है, इतनी सी लॉजिक है। अब तुम यहाँ पे स्टोर स्पेस कितना ले रहे हो, स्पेस तुम अभी इन फैक्टोरियल का ही ले रहे हो। तुमने एक्स्ट्रा क्या काम किया, एक्स्ट्रा सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाई है। ये एक इफ कंडीशन लगाने से आपकी वो सेट वाली जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो रिड्यूस हो गई यहाँ से। तो अभी अगर मैं ये इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिमेन्स सेम विच इज नथिंग बट n इंटू एन फैक्टोरियल, बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ये अब थोड़ी रिड्यूस होके ये ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल में आ चुकी है फर्स्ट केस में। इसके सूडो कोड की बात करते हैं। इतना तो पता है कि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन यूज़ करने वाले, है ना। हम लोग इस परम्यूटेशन फंक्शन को यूज़ करेंगे। ये परम्यूटेशन फंक्शन करता क्या है, ये परम्यूटेशन फंक्शन आपका एक एरे लेता है और ट्रू और फॉल्स दो चीज़ें रिटर्न करता है। किसके बेसिस पे, अगर आपने जो एरे पास किया है उसका लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगला परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, सो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। हम लोग एक लूप भी चलाते हैं क्योंकि अपने को सारे के सारे परम्यूटेशंस को एक एरे के अंदर पुश करना होता है, तो अपने को एक लूप चाहिए। लूप हम लोग कौन सा लगाते हैं, हम लोग एक डू वाइल लूप लगाते हैं। ये डू वाइल लूप में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आंसर में तुम जो परम्यूटेशन लेके आए हो उसको इसमें सबसे पहले हम लोग पुश कर दे रहे थे। अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप हम लोग करने वाले हैं। एक्स्ट्रा स्टेप में ये करेंगे कि अगर आपका आंसर अगर एम्प्टी है, यानी कि अभी उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर आंसर का जो बैक है, बैक यानी कि लास्ट एलिमेंट जो उसमें इंसर्ट किया है, अगर वो आपके नम्स के बरोबर नहीं है, नम्स यानी कि आपका परम्यूटेशन, ठीक है, अगर वो इसके बरोबर नहीं है तो आपको आंसर के अंदर पुश बैक कर देना है। किसको पुश करना है, नम्स को, क्योंकि नम्स क्या है, नम्स एक आपका परम्यूटेशन है, ठीक है। और यहाँ पे वाइल कंडीशन लगेगी। वाइल कंडीशन क्या लगेगी, अपन सीधा नेक्स्ट परम्यूटेशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट परम्यूटेशन के अंदर हम लोग एक एरे पास करेंगे। एरे किसका, नम्स का, नम्स बिगिंस लेके नम्स एंड तक। तो ये सूडो कोड है एक्चुअली, कैसे काम करना है पूरा पूरा। सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप एक आंसर इनिशियलाइज कर दोगे जो कि एक 2D एरे है, ठीक है। उसके बाद आप एक डू वाइल लूप लगाओगे। इस डू वाइल लूप में, डू वाइल में यहाँ कीवर्ड ये वाइल यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, ये कीवर्ड यहीं पे होता है, यहाँ पे सिर्फ डू होता है, ओके। तो डू वाइल लूप में आप डू वाइल में क्या करोगे, सबसे पहले आप एक कंडीशन चेक करोगे। कंडीशन में क्या चेक करोगे, अगर आपका आंसर एम्प्टी है यानी कि आप अभी तक एक भी परम्यूटेशन को पुश नहीं किया आंसर के अंदर, आपका जो सबसे इनिशियल परम्यूटेशन है उसको आंसर के अंदर पुश कर दिया, और दूसरी बार जब आप कोई परम्यूटेशन लेके आओगे तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमने जो इंसर्ट किया है अभी आंसर में, क्योंकि लास्ट में इंसर्ट किया है, ये कैसे पता चल रहा है कि लास्ट के साथ अगर मैच नहीं हुआ तो किसी और के साथ मैच नहीं होगा। क्योंकि आप ये बोल सकते हो ना कि हो सकता है कि मान लो 1 1 यहाँ पे है, अब मान लो फिर आपने 2 1 यहाँ पे लाया और उसके बाद आप मान लो 1 1 पुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर मैं सिर्फ बैक के साथ चेक करूंगा तो मैं सिर्फ 2 1 के साथ चेक कर रहा हूँ, हो सकता है कि मेरा जो परम्यूटेशन जो मैं अभी पुश कराने जा रहा हूँ वो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा हो। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो लास्ट वाले एलिमेंट के साथ नहीं मैच हुआ तो किसी और के साथ मैच नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि ना नेक्स्ट परम्यूटेशन अगर तुम फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे खास बात होती है कि आप जो भी एरे के साथ काम कर रहे हो उस एरे को आपको पहले सॉर्ट करना होता है ना। अगर आप सॉर्ट नहीं करोगे तो ये जो नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन है ये सही से बिहेव नहीं करता। सही से बिहेव नहीं करने का मतलब क्या है कि मान लो आपने इसको एक एरे दिया, मान लो आपने दिया इसको 1 2, ठीक है।
तो ये 1 2 लेगा और 1 2 का बोलेगा ओके दूसरा परम्यूटेशन 2 1, यानी कि इससे बड़ा, लेक्सोग्राफिकली इससे बड़ा। लेक्सोग्राफिकली का मतलब है कि अगर ये 1 2 और 2 1 एक मान लो एक स्ट्रिंग है, तो ये डिक्शनरी में किस फॉर्मेट में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं? सबसे पहले 1 2 आता, उसके बाद 2 1 आता। लेकिन तभी ये समझो कि आपने इसको 1 2 पास किया, ठीक है। 1 2 में इसने देखा कि 2 1 एग्जिस्ट करता है, इसका अगला परम्यूटेशन जो कि इससे बड़ा भी है, लेक्सोग्राफिकली बड़ा भी है, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ये यानी कि नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको 2 1 पास करोगे एरे में, तो इसका अगला कोई इससे बड़ा परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए, 2 1 का अगला परम्यूटेशन 1 2 तो है ना। एक्चुअली चाहे एरे में चाहे 1 2 पास करो, चाहे 2 1 पास करो, परम्यूटेशन तो दो ही बनेंगे। तो इसलिए हमको एरे को सबसे पहले ना सॉर्ट करना होता है। जो भी एरे आपको गिवन है उसको आपको सबसे पहले सॉर्ट करना होगा, और सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। जो n होता है वो आपके एरे का साइज होता है वर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सूडो कोड। तो आई थिंक अभी ये क्लियर है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर चुके हम लोग। तो अभी चलते हैं और कोड करते हैं। तो ये है क्वेश्चन जिसमें आपको ये परम्यूट यूनिक फंक्शन दिया हुआ है, जिसको जो रिटर्न टाइप है वो है 2D वेक्टर है, इंटीजर टाइप का, और आपको एक एरे दिया हुआ है नम्स। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इस जो नम्स गिवन है इस नम्स को सबसे पहले सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन होता है सॉर्ट करके, इसमें हमको पास करना होता है वो एरे जिसको हम सॉर्ट करना चाहते हैं। तो एरे को पास करने के लिए सीधा सा होता है कि नम्स के स्टार्टिंग से लेके, यानी कि स्टार्टिंग यानी कि बिगिन से लेके एंड तक हम लोग इसमें पास कर देंगे, तो ये इसको सॉर्ट कर देगा। क्लियर है। अभी हम लोग 2D वेक्टर बनाने वाले हैं। वो वेक्टर क्यों बनाएंगे, वो वेक्टर हम लोग इसलिए बनाने क्योंकि हम उसमें अपने आंसर को स्टोर करेंगे। आंसर यानी कि वो सारे परम्यूटेशंस को हमको स्टोर करना है, और वो है किस टाइप का, इंटीजर टाइप के वैल्यूज हैं हमारे पास, इसका हम लोग नाम दे देते हैं आंसर। ओके, तो डू वाइल लूप लगाएंगे। डू वाइल लूप में सबसे पहली कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहली कंडीशन चेक करेंगे कि आंसर जो है वो एम्प्टी है कि नहीं। अगर आंसर एम्प्टी है तो भी हम लोग पुश करेंगे, या फिर अगर आंसर का जो बैक है अगर वो नॉट इक्वल्स टू नम्स है। नम्स यानी कि क्या होता है, आप जो परम्यूटेशन लेके आए हो वो। अच्छा ठीक है, मैं ये बात अभी क्लियर करता हूँ कि ये नम्स परम्यूटेशन है और नम्स एरे दोनों एक ही चीज़ है। वैसे आप अभी इतना समझ कर चलो कि ये जो नम्स है ये एक टाइप का परम्यूटेशन ही है। तो आप ये चेक कर रहे हो कि ये परम्यूटेशन आप लेके आए हो, और आंसर का यानी कि जो वेक्टर है उसका लास्ट वाला एलिमेंट नम्स के साथ मैच नहीं करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो हम उसको आंसर में पुश कर देंगे। पुश करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है पुश बैक, और सीधा हम लोग नम्स लिख देंगे तो नम्स उसके अंदर पुश हो जाता है। ये सिंटैक्स है। अभी वाइल कंडीशन अपने को लगानी होगी। वाइल कंडीशन में क्या लगाएंगे कि जो नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन है, नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे। एरे में क्या होगा, हम एक्चुअली नम जो अपना नम्स है वो हमारा गिवन एरे है, और उस गिवन एरे का अगला परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं हम ये चेक करना चाहते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये नेक्स्ट परम्यूटेशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। इतना तो क्लियर है कि अगर जो नम्स हमने पास किया है इसके अंदर, अगर वो नम्स नामक जो एरे है अगर उस एरे का अगला लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके साथ साथ ये एक और काम करता है, ये नम्स को अपडेट कर देता है उस परम्यूटेशन के साथ में। सपोज आपका जो नम्स है वो है 1 2, ओके। तो अगर आप नेक्स्ट परम्यूटेशन के आर्ग्यूमेंट में इस नम्स को पास करोगे तो ये ट्रू तो रिटर्न करेगा, क्योंकि 1 2 का अगला परम्यूटेशन 2 1 एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ ये नम्स को अपडेट करके 2 1 कर देगा, ठीक है। तो ये अपडेशन भी हो जाती है, ट्रू या फॉल्स भी रिटर्न होती है, और ये जो आप एरे पास कर रहे हो वो एरे अगले परम्यूटेशन के साथ अपडेट हो जाती है, ठीक है। आपने पास किया था 1 2, अभी आपका जो नम्स है वो एक्चुअली 2 1 हो चुका है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड, ये हमने आर्ग्यूमेंट में पास किया नेक्स्ट परम्यूटेशन के, तो ये नेक्स्ट परम्यूटेशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करेगा तो ये लूप वापस से एग्जीक्यूट होगा, ये दो लाइन वापस से एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज ये लूप से बाहर चला जाएगा। और बाहर जाने के बाद क्या करना है, इसको बाहर जाने के बाद हमें इसको रिटर्न करना है। किसको रिटर्न करना है ये बताओ, आंसर को या नम्स को। लेक्सोग्राफिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अपने को परम्यूटेशंस मिलेंगी उसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला नम्स के पास होगा।
लेकिन नम सिर्फ एक एरे है। हम स्टोर किस में कर रहे हैं? आंसर में। तो आंसर के पास हमारे सारे परम्यूटेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो हम रिटर्न करेंगे आंसर को। आई थिंक कोड क्लियर कैसे काम कर रहा है ना। ठीक है, तो अभी एक बार रन करके देखते हैं पहले सैम्पल टेस्ट केस। लेट्स होप हो तो जाना चाहिए शायद। ओके, तो कुछ एरर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या है? एक्सपेक्टेड वाइल इन द डू वाइल लूप। भाई यार ये मैंने कहाँ पे लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। डू वाइल लूप के भाई यहाँ पे लग, ये डू वाइल लूप है ना, तो कंडीशन तो यहाँ पे लगेगी वाइल लूप। ठीक है, ओके इट गॉट एक्सेप्टेड। तो अभी सबमिट करके देखते हैं इसको। सबमिट पे, ओके सो इट गॉट एक्सेप्टेड। So thank you so much for watching this tutorial. See you in the next one. Thank you.